Session, we can discuss about the basic concept of engineering drawing. What are the basic tools or basic instruments required for the engineering drawing, and how are what the basic need or basic concept we kept in our mind during the making the drawings. Okay, so let's start the session. Okay, here you are see the drawing sheet is there, and in the drawing sheet what happened, you can see what are the dimension of this below title block. Okay, see, this is your title block, and what is the dimension? Okay, 3 mm above and 3 mm below line space are left, and your name means title name is written in the. Okay, similarly your title, your date is right there, and here is you can all the information you can write here. Okay, this is a simple format. This is a simple format for the engineering sheet, engineering drawing sheet, where you draw the drawings. So here, what is drawing? Describing any object, information, describing any object and information in the form of drawing. What is engineering drawing? Graphical means of expression of technical detail without the barrier of a language. Means what happened, if anyone don't know the other language but they have knowledge of engineering drawing, then language is not a barrier to understood each other concept regarding the engineering drawing. Okay, so that we can call the engineering drawing is universal language of engineers. Universal language of engineers. You don't know English, you don't know French, you don't know German, but you can communicate through engineering drawings from their engineers too, without knowing the uh, mother tongue or mother language of that country. You can transfer your idea through the engineering drawing to the drawing to that person. So diagram, sketch, picture, communication skill. We grasp information easily if it is illustrated with diagram, sketches and picture, etc. Like this. This is the LCA aircraft. The world smallest lightweight multi-role supersonic compact aircraft of the world. Okay, so these information is given in detail in the drawing of that aircraft. So if you see
this picture and there is no text, then what you assume? You can assume this picture about this aircraft means the some information, and this picture is give a overall view, what are the design, what are the shape, how many wheels is connected, where the pilot cockpit is there. Like these information you get without any written text. And how you know? Because we can understand the objects, the picture better than the text, better than the text. In some state board, there is a competition. What is the competition? There is a competition. The examiner provide you a picture. Examiner provide you a picture, and based on the that picture, you have to write a story. This is the competition, story writing competition by the picture. Okay, one picture, and what you understand or what you conceptualize from that picture, from that picture. So what does this mean? Means on the basis of given picture you have to write a story. So if you can get this picture, and examiner or I want to tell you, you write a story on the base of the picture, then you have to write something. Okay, you can write a story regarding a man who want to become a pilot, or you can write a story about the lightest aircraft. Okay, and or you tell about something, what is the flying experience. Okay, so different person, different perspective is there, different thinking is there. So what happened? But if you belongs to the engineering drawing, you are the engineers. Okay, I told you three object, three option regarding this picture. Means if anyone want to write something about this, so what happened? One person think about a story of a man who become a pilot. Okay, and one person think they can describe experience of flighting. Okay, one person describe the things about the aircrafts. Okay, so this is the normal person. But what is the thing about if a engineering drawing engineer, a engineer think about that, a engineer think about that, what is the shape of this aircraft, what is, how many wheels is connected. Okay, what is the weight of this, why this shape, this shape is provided like that. Okay, what is the dimension of these wings. Okay, these are things by the drawing engineers, because they are dealing with the shape, size and dimension, all these things. Okay, so they think like that, they think about that. Okay, so from a picture we can imagine many things, and we can tell the stories, we can make different stories. But what happened when engineers who know the engineering drawings, they always concept about in from the given figure, what is the height, weight, shape, size, dimension of the different parts of the given drawing. This concept is come in the engineering drawing engineers.
Okay, so this is the concept. So now see, this is the source, this is the Airbus. Okay, why this called the Airbus? Because in comparison to the car and m- mini vehicles, in the buses have the more spacious. Okay, so this Airbus have two-story sitting arrangement. Means here you can see the windows and here you can see the windows. So what happened here? So according to this, the largest passenger jet, Airbus, 80-meter wingspan and a tail has stand as high as seven-story building, carry more than 550 passenger. Okay, so see how much the capacity of this Airbus, A380 Airbus. So the biggest, largest uh, air passenger involved in. So you can see this is the source. You can go through and make more detail about the this Airbus. Okay, so what happened? Oh, buses is more convenient, or we can say that in the road, in the road transportation, bus have maximum capacity for passenger in comparison to any other vehicles. So that in the air route, the air buses has maximum capacity to passenger. Similarly, like a road, in the road system, what happened? Buses is have more capacity regarding to the passengers. Similarly, in the air buses is have the more capacity regarding the passengers. So more and more passenger can involve and finish their journey in one time. Okay, so it would just be impossible to communicate all necessary detail about the LCA oblique Airbus A30 A380 verbally or in writing. Okay, because when we going to write or when we going to explain, then something is missing. A pictorial or drawing is worth a thousand word. A pictorial drawing is worth a thousand words. Means we can write a story about 5 to 6 pages, 8 pages, 10 pages, and instant that we can uh, show or make a drawing with the full explanation, full dimension detail. That is the similar. Okay, the LCA oblique Airbus 838 would be impossible to create without computer graphics and drawing model. Okay, before the LCA or Airbus A380, it is not possible they can directly manufacture. Before manufacturing, they need the engineering, computer graphics, and drawing models. Okay, drawing are the roadmap which show how to manufacture, produce, or structure, manufacture product or structure. Okay, in the present era, what happened?
if you go for the civil engineering, then so many structures is required, new building is manufacturing, and so many different design and look and concept will be involved in the structural design, civil engineering. How these are possible? These are the possible through the computer graphics and engineering model only. There are engineering drawing concept is there. Okay, so now before manufacturing any car or any vehicle or any roof for the houses, they can calculating, analyzing the whatever the force analysis, whatever the things, what is the big point of that structure or that vehicle. They can analyze the different aspects from the help of engineering drawing and engineering drawing computer application, or we can say that computer graphics is there. So with the help of computer graphics, we can analyze the all different aspects regarding the product which we going to manufacture or structures. So like see, impossible to describe the detail of the building. Okay, so if we draw this, or we going to draw the detailed drawing of this building, so we can easily understand how many story of from this building, what is the size of the room available in this building, what is the height, what is the base, how many pillar is there, how many things is there. So like that we can easily understand through the drawing. But if we go through the writing the information, then what happened, it is the awkward, or it is boreous to read uh, information in the text writing. Okay, like फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी, जैसे आपके लिए एग्जाम्पल के लिए क्या बोलें कि आपको एक बुक दे दिया जाता है जिसमें क्या कहते हैं कि कोई भी पिक्चर्स नहीं है, देयर इज नो एनी पिक्चर्स, लाइक अ स्टोरी बुक. ओके, एक स्टोरी बुक है, कोई भी पिक्चर्स नहीं है, तो क्या होता है कि, और एक बुक है, एक स्टोरी बुक है जिसमें बहुत सारे पिक्चर्स हैं. ओके, तो क्या होता है कि जो पिक्चर्स वाली आपकी स्टोरी बुक है वो ज्यादा कम्युनिकेट, ज्यादा पसंद की जाती है इन कंपेरिजन टू नॉन पिक्चर बुक्स. ठीक है ना. तो अभी अगर आप इंजीनियरिंग ड्राइंग की ही बुक ले लें या फिर अपने मैकेनिकल से रिलेटेड कोई भी बुक ले लें, आप अज्यूम करिए कि आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें एक भी पिक्चर नहीं है, ओनली टेक्सटिंग इज देयर, ओनली टेक्स्ट इज देयर. मीन्स आपको बॉयलर बोला जाए कि बॉयलर है, वाटर ट्यूब बॉयलर है, या फायर फायर ट्यूब बॉयलर्स है, या फिर क्या कहते हैं कि आपके मशीन कंपोनेंट है, लेथ मशीन है, या फिर आपका शेपर मशीन है, विदाउट एनी डायग्राम. सो क्या आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि जो टेक्सटिंग है उसके थ्रू आप उसका शेप एंड साइज इमेजिन कर सकते हैं? नो, दैट इज नॉट पॉसिबल. अगर आपको सिर्फ लेथ मशीन के बारे में बताया जाए कि हाँ एक लॉन्ग मशीन रहती है जिसमें क्या कहते हैं कि हम मशीनिंग करते हैं, थ्रेडिंग करते हैं, थ्रेड कट करते हैं, ड्रिल करते हैं, ड्रिलिंग मशीन में करते हैं, तो आप क्या एज्यूम कर सकते हैं कि वो मशीन दिखती कैसी होगी विदाउट
seeing the picture of that machine. ओके क्या एजम्पशन रहेगा, क्या एज्यूम करेंगे कि आपका क्या कहते हैं कि जो पिक्चर्स है आपका कोई भी पिक्चर नहीं है, देयर इज नो डायग्राम फॉर दैट. सो और जैसे कोई भी आंसरिंग करते हैं आप, है ना, क्वेश्चंस की, तो क्या है कि जैसे आपका बोला जाए क्लासिफिकेशन ऑफ द मशीन्स, ओके, या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ द टर्बो मशीन्स, हाइड्रोलिक मशीन्स. तो क्या कि जो बुक्स में भी रहता है, कई सारी बुक्स रहती हैं जिसमें आप देखते हैं कि क्लासिफिकेशन ब्लॉक डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है. मींस डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक डायग्राम्स रहते हैं, और वो क्या होता है, वो आपको बहुत इजिली अंडरस्टैंड होता है, कंसेप्चुलाइज होता है, बहुत ही इजिली कंसेप्ट में आता है. हाँ, वाटर ट्यूब बॉयलर ऐसा होता है, और लेथ मशीन ऐसी होती है. तो अगर आपके पास पिक्चर है, ठीक है ना, तो अगर वो रियल में आ जाएगा तो आप रिकॉग्नाइज कर लोगे कि हाँ ये लेथ मशीन है ना. लेकिन अगर आपको लेथ मशीन सिर्फ वर्डिंग के थ्रू एक्सप्लेन किया जाए, ठीक है ना, कि यहाँ पे क्या कहते हैं कि हाँ एक सेंटर लेथ होती है, सेंटर लेथ में क्या कहते हैं कि एक 3 जा 4 जा चक होता है, स्पेंडल होता है, स्पेंडल में हम जॉब को फिट करते हैं, देन वी कैन स्टार्ट दी मोटर एंड रोटेटिंग the spindle, and we put any tool like turning tool or threading tool, we can apply that tool and threading and turning is finished. So what happened, can you imagine that you what you understand? The concept is very poor without picturization, without picturization. Okay, सो आप ये भी एक कंसेप्ट ये भी अज्यूम करिए कि आप एक मूवी देख रहे हैं जिसमें सिर्फ एक पिक्चर दे दिया जाता है, और पीछे से सिर्फ जो भी एक्टर्स हैं उनकी सिर्फ वाइज आती है, देयर इज नो पिक्चराइजेशन. तो ऐसी मूवी आप देखेंगे, ऐसी मूवी देखने आप क्या कहते हैं कि सिनेमा हॉल में जाएंगे, मॉल में जाएंगे? नहीं, आप ऐसी मूवी को पसंद नहीं करेंगे, बिकॉज देयर इज नो पिक्चराइजेशन. ओके, सो दिस इज द कंसेप्ट. द स्ट्रॉन्गेस्ट मेमोरी इन द वर्ल्ड, दैट इज पिक्चोरियल मेमोरी, दैट इज द पिक्चोरियल मेमोरी. ओके, अभी आप सबने मूवी देखी होगी तानाजी, है ना. तो तानाजी मूवी आपने देखी, उसके पहले आपने तानाजी की स्टोरी पढ़ी होगी, आपके टेक्स्ट बुक में होगी, 9th-10th में जो आपकी मराठी की बुक होगी या हिस्ट्री की, उसमें पढ़ी होगी, ठीक है ना. तो अभी बताइए कि आपने जो स्टोरी पढ़ी थी उसमें से कितना कंसेप्ट आपको याद है, कितनी चीजें याद है, और आपने जो मूवी देखी उसमें से क्या क्या चीजें आपको याद है. तो आंसर होगा कि आपने जो मूवी में देखी है उसका मैक्सिमम पार्ट आपको याद है. क्यों? क्योंकि वो पिक्चोरियल है. द स्ट्रॉन्गेस्ट मेमोरी ऑफ द पर्सन आर ह्यूमन इज द पिक्चोरियल मेमोरी. जो हम देखते हैं वो हमारी मेमोरी में बहुत ही फास्ट वे में स्टोर होती है, ठीक है ना. इसलिए क्या कहते हैं कि पिक्चोरियल थिंग्स का ज्यादा कंसेप्ट रहता है, ठीक है ना. तो इस कंसेप्ट पे आप देखे होंगे, एक और मूवी थी, क्या नाम था उसका, दृश्यम, अजय देवगन की दृश्यम. किसी ने देखी दृश्यम मूवी? सर हाँ, तो दृश्यम, हाँ तो दृश्यम मूवी में क्या होता है कि जो एक्टर रहते हैं अजय देवगन, वो सभी के सामने एक पिक्चर क्रिएट करते हैं. पिक्चर्स मींस वो कोई स्टोरी नहीं बनाता है कि क्या कहते हैं कि उस वो गोवा गया था फिर वापस आया था, वो कोई स्टोरी नहीं थी. वो सारी चीजें करके उस लाइफ को जीते हैं, मींस उस लाइफ को पिक्चराइज करते हैं. जो स्टोरी उन्होंने बताई
उस लाइफ को वो पिक्चराइज करते हैं। इसीलिए जितने भी कैरेक्टर से वो मिलता है वो ऐसा होता है कि वो सारे लोग सच बोल रहे हैं, क्योंकि वो जो स्टोरी वो बता रहा है उसने उसको पिक्चराइज किया है, सबने वो चीजें देखी हैं, की हुई हैं, इसलिए वो स्ट्रॉन्गेस्ट मेमोरी रहता है। तो उसमें एक मूवी के सीन में जो इंस्पेक्टर रहती है वो ये बोलती, जो कमिश्नर रहती है वो बोलती है कि जो पिक्चोरियल मेमोरी रहती है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेमोरी होती है, द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट मेमोरी इज पिक्चोरियल मेमोरी। ठीक है ना? तो ये पिक्चोरियल मेमोरी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रहती है, इसलिए ये सबसे ज्यादा इफेक्ट डालती है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल आपको बताएं, हैरी पॉटर। हैरी पॉटर की 7 बुक्स हैं। यस इंडिया में कितने लोगों ने हैरी पॉटर बुक पढ़ी है? सर, मूवी देखी है उसकी? हाँ, मूवी देखी है, बुक नहीं पढ़ी है। बुक तो नहीं पढ़ी नहीं सर। सर, नहीं पढ़ी। देखी नहीं हाँ, देखी। तो यही कंसेप्ट है ना, कि बुक नहीं पढ़ी है लेकिन मूवी देखी है ना? क्यों? क्योंकि मूवी पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन है आप बुक का। ठीक है ना? कि क्या कहते हैं कि बुक पढ़ के कंसेप्ट को यानी समझना, उस बुक के स्टोरी को इमेजिन करना क्या है, डिफिकल्ट है। आपको इंडिया में अगर किसी से पूछा जाए या कंपेरिजन किया जाए तो इंडिया में मुश्किल से 5 to 10% लोगों ने वो बुक पढ़ी होगी, या फिर परसेंटेज और भी डाउन होगा। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि हाँ हैरी पॉटर मूवी कितने लोगों ने देखी है, तो ये बोलेंगे 80 to 90% लोगों ने मूवी देखी है। क्यों? क्योंकि पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन हो रहा है वहां पे। और हैरी पॉटर मूवी देखने के बाद क्या कहते हैं कि जिन्होंने बुक पढ़ी है और जिन्होंने मूवी देखी है, अगर कंपेरिजन किया जाए तो जिन्होंने मूवी देखी है उनकी मेमोरी ज्यादा शार्प रहेगी रिगार्डिंग टू द कैरेक्टर ऑफ द हैरी पॉटर बुक्स, हैरी पॉटर स्टोरी। ठीक ना? तो जो भी क्या कहते हैं कि बुक्स रहती हैं, बुक्स पढ़ते हैं, लेकिन क्या है, अगर उसका पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है, उसमें पिक्चर्स रहते हैं, तो वो कंसेप्ट इजिली समझ में आता है। अगर सेम है कि जैसे आपका थर्मल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है, या फिर आपका सोम का बुक है, सोम है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, उसमें कोई भी पिक्चर ना दिया जाए, है ना? जैसे मैं आपको ये बोलूं कि आप लास्ट लेक्चर में मैंने क्या बोला कि रिवेटेड ज्वाइंट है ना? और मैं आपको ये दिखाऊं ही ना कि रिवेट कैसा होता है, मैं ये बता दूं कि हाँ उसका जो हेड होता है वो राउंड शेप में होता है। तो आप एक्चुअली इमेजिन कर सकते हैं कि कैसा राउंड शेप में होता है, किस तरीके का राउंड शेप होता है। अगर आप पिक्चर नहीं देखेंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे, हाँ राउंड शेप होता है, किस तरीके का राउंड शेप होता है, वो कंसेप्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि पिक्चर्स नहीं है वहां पे। तो पिक्चर इज मस्ट इंपॉर्टेंट टू क्लियरिफाई योर कंसेप्ट रिगार्डिंग द एनी प्रोडक्ट आर कंपोनेंट। सो ये देखिए, ये आपकी लेथ मशीन है ना? दिस इज योर लेथ मशीन, सेंट्रल लेथ मशीन। तो ये आपका टेल स्टॉक है, ये आपका हेड स्टॉक है, ये यहाँ आपका गियर बॉक्स का अरेंजमेंट रहता है। ओके, ठीक है। और ये क्या है, ये जो रॉड है इसको फीड रॉड बोलते हैं, मींस। और ये आपका टूल पोस्ट है। ठीक है ना? कितना इजिली मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया कि ये आपका टूल पोस्ट है। मुझे ये बताने की जरूरत नहीं कि टूल पोस्ट ऐसा दिखता है, ये आपको ऑलरेडी दिख रहा है कि टूल पोस्ट कैसा दिखता है ना? और ये आपका फीड रेट, सॉरी, फीडिंग बार है, ये टेल स्टॉक है। तो क्या होता है कि हमारा जो वर्क पीस होता है ना, अगर स्मॉल वर्क पीस है तो वो क्या कहते हैं कि यहाँ पे हम स्पेंडल, इसको स्पेंडल बोलते हैं और इसको चक बोलते हैं, है ना? तो इसमें क्या होते हैं कि इधर 3 या 4 चक होता है ना? तो इसके बीच में हम वर्कपीस को फिट करते हैं। यहाँ पे ये आपका टूल पोस्ट है, मतलब यहाँ पे हम टूल को सेट करते हैं। और देन ये आपका फीडिंग है, यहाँ से फीडिंग होती है, इसको रोटेट करते हैं। तो ये
आगे पीछे मूव करता है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूव करता है, और यहाँ पे आपका टूल की सॉरी वर्कपीस की कटिंग होती है। और ये टेल स्टॉक क्यों होता है? टेल स्टॉक जब आपका क्या कहते हैं कि लॉन्ग वर्कपीस होता है ना, लॉन्ग वर्कपीस होता है। मतलब क्या, जैसे आपका लॉन्ग वर्कपीस हुआ तो जो फोर्स लगता है टूल के थ्रू, उसकी वजह से आपका जो वर्कपीस है वो बेंड हो सकता है। तो जब लॉन्ग वर्कपीस होता है तो उसको हम हेड स्टॉक हेड स्टॉक और टेल स्टॉक के बीच में रखते हैं, बिटवीन द हेड स्टॉक एंड टेल स्टॉक। ठीक है ना? तो अभी स्टूडेंट्स आप ये सोचिए कि ये सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको कितनी इजिली दे पा रहा हूं। अगर ये सारी इंफॉर्मेशन सिर्फ टेक्स्ट में लिखी होती तो एक्सप्लेन करने में, आपको समझने में और मुझे एक्सप्लेन करने में, दोनों लोगों को बोथ साइड डिफिकल्टी इज देयर। difficulty to describe the detail of the machine without the diagram। तो आपका डायग्राम ड्राइंग्स यहां पे भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपका केमिकल रिएक्टर्स है, तो यहाँ पे केमिकल रिएक्टर्स और ये इसकी डिटेल ड्राइंग है। थोड़ा सा ब्लर है, आप लोगों को दिखेगा नहीं, बट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। ओके, तो यहाँ पे ये जो डायग्राम है, यहाँ पे क्या कहते हैं कि ये देखिए इलेक्ट्रिक सर्किट है। अब इलेक्ट्रिक सर्किट, यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर पढ़ते हैं उनको ये कंसेप्ट बहुत इजीली समझ में आता है कि ये आपका जो डायोड ट्रोयोड रखा हुआ है, यहाँ पे ये डायोड है, ये ट्रोयोड है। ये कैसे समझ में आता है? ये क्या कहते हैं, केवल सिंबल से समझ में आता है कि ये डायोड्स हैं, ये ट्रायोड्स हैं, ये इनपुट है, आउटपुट है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे निगेटिव चार्ज है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे वोल्ट सप्लाई हो रहा है। कैसे समझ में आ रहा है? जस्ट लाइक अ सिंबल्स। यहाँ पे सिंबल्स दिए हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग अभी ये जो सिंबल्स है ये रेजिस्टेंस का सिंबल है, तो हमको इजीली समझ में आ गया कि यहाँ पे रेजिस्टेंस अप्लाई है ना। कैसे समझ, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है, देयर इज नॉट राइटिंग देयर कि यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस अप्लाई हो रहा है। यहाँ पे सिंबल्स के थ्रू हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि यहाँ पे रेजिस्टेंस अप्लाई हो रहा है, जिसकी इंटेंसिटी 3 है, 3 ओम। तो ये सारे कंसेप्ट कैसे क्लियर हो रहे हैं? थ्रू द डायग्राम। अगर यही सारा टेक्सटिंग होता तो explanation is very difficult, understanding is also very difficult। So drawing is important for all branches of engineers or all branches of engineering। So graphical representation of an object, drawing, graphical representation of an object is drawing। Engineering drawing, a drawing of an object that contain all the information like actual shape, accurate size, manufacturing method, etc. required for its construction। So आपको डिफरेंस समझ में आया? ड्राइंग इज अ पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है ना? तो जो ड्राइंग है कि आपका ऑब्जेक्ट कैसा दिखता है, हाउ ऑब्जेक्ट इज लुक, ये इंफॉर्मेशन ड्राइंग से मिल जाती है। लेकिन आपको वो प्रोडक्ट कैसे मैन्युफैक्चरिंग करना है, ये डिटेल आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग में दिखती है। ओके, ये डिटेल आपको कहाँ दिखती है? इंजीनियरिंग ड्राइंग में दिखती है। मींस उसका एक्चुअल शेप, साइज, मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स, ये सब आपको कहाँ पे दिखेगा? इंजीनियरिंग ड्राइंग में दिखेगा। नो कंस्ट्रक्शन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एनी मोड, सॉरी, no construction manufacturing of any man-made engineering object is possible without the engineering drawing। This is talk about the man-made, not the nature-made। okay, तो मैन मेड जो भी आपके डिजाइन है, कंसेप्ट है, वो क्या कहते हैं कि आप इंजीनियरिंग ड्राइंग के बगैर पॉसिबल नहीं है। सो engineering drawing is important for all engineering branch।
वो आपका सिविल हो, कंप्यूटर हो, इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कोई भी, वहां पे इंजीनियरिंग ग्राफिक्स और इंजीनियरिंग ड्राइंग इन्वॉल्व ही रहती है। ठीक है ना, जैसे ये सर्किट का डायग्राम मैंने आपको दिखाया, दिस इज बिलोंग टू इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना। तो यहाँ पे भी सिंबल्स, डायग्राम्स, स्पेसिंग, ये यहाँ से यहाँ के बीच में कितना स्पेस है, दो रेजिस्टेंस के बीच में कितना स्पेस है, दो डायोड, टू ट्रायोड के बीच में कितना डिफरेंस है, ये सब आप कैसे समझेंगे, इंजीनियरिंग ड्राइंग के थ्रू ही आप कंसेप्ट को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। So what you learn in this course, you will learn how to industry communicate the technical information, means क्या है कि जो टेक्निकल थिंग्स है, टेक्निकल इंफॉर्मेशन है, वो कैसे कम्युनिकेट होता है। ठीक है ना, कि क्या कहते हैं कि एक कंपनी है ना, जैसे टाटा मोटर्स है, उसने बोला कि हमको क्या कहते हैं कि चेचिस बनाना है। चेचिस क्या होता है, आप लोग मतलब चेचिस जो आपकी कार है जिस पे पूरी कार बॉडी डिपेंड रहती है, वो चेचिस रहता है ना। तो वो बनाना है, तो अब टाटा मोटर्स को कैसी चेचिस चाहिए, वो अपने वेंडर को कैसे बोलेगी, कैसे बताएगी, थ्रू दी इंजीनियरिंग ड्राइंग। ठीक है, वो पर्टिकुलर चेचिस का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, प्रोजेक्शनल व्यू ड्रॉ करके मैन्युफैक्चरर के पास सेंड करेगी। ठीक है ना, सिर्फ 1 पेज और 2 पेज, दैट इज सफिशियंट। विजुअलाइजेशन, द एबिलिटी टू मेंटली कंट्रोल विजुअल इंफॉर्मेशन। ठीक है ना, अभी क्या है कि हम विजुअल इंफॉर्मेशन कंट्रोल करते हैं। जैसे मैं इंजीनियरिंग ड्राइंग आपको बता रहा हूं, तो मैं आपको बोलता हूं कि एक ऑब्जेक्ट को आपको ऐसे विजुलाइज करना है, ऐसे शो करना है, ऐसे देखना है कि आप सिर्फ आपकी आंखों से परपेंडिकुलर रेज थ्रो आउट हो, और आप जो ऑब्जेक्ट देखें उसका फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू, बॉटम व्यू ड्रॉ करें। ठीक है, ये कभी पॉसिबल होता है जब आपकी इमेजिनेशन स्ट्रांग होती है, योर विजुअलाइजेशन विल स्ट्रांग। ठीक है ना, क्योंकि एक 3D डायग्राम आपको दिया हुआ है, एक आइसोमेट्रिक डायग्राम दिया हुआ है, वहां से आपको ये कंसेप्ट समझ में आता है, ये आप थिंक करते हैं कि जब हम डायरेक्टली एक्स डायरेक्शन से देखेंगे या फिर वाई डायरेक्शन से देखेंगे तो प्रोडक्ट कैसा दिखेगा, और वो कैसा दिखेगा वैसा ही आप ड्रॉ कर देते हैं। दैट इज योर विजुअलाइजेशन। देन ग्राफिक्स थ्योरी, what about the graphics theory? So graphics theory, geometry and projection techniques, geometry and projection techniques जो आपने अभी पूरे इंजीनियरिंग ड्राइंग के सिलेबस में आपने स्टडी किया, हमने डिस्कस किया सारी थिंग्स। वो स्टैंडर्ड्स, सेट of rule that govern how part art made and technical drawing are represent। ठीक है, स्टैंडर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम ड्राइंग जो बनाते हैं वो फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल में ही बनाते हैं। ठीक है, फर्स्ट एंगल में अगर ड्राइंग बन रही है तो फ्रंट व्यू टॉप पे रहेगा और टॉप व्यू फ्रंट व्यू के बॉटम में रहेगा। ठीक है ना, कंसेप्ट समझ में आ रहा है। ये एक स्टैंडर्ड है कि ऐसा नहीं है कि आपने फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड चूज किया और क्या कहते हैं कि फ्रंट व्यू कहीं पे भी बना दिया, साइड व्यू कहीं पे भी बना दिया, है ना, टॉप व्यू कहीं पे भी बना दिया। नो, देयर इज अ प्लेस फॉर ऑल प्रोजेक्शन, है ना। ये स्टैंडर्ड्स है, हमको स्टैंडर्ड्स फॉलो करना पड़ेगा। अगर हम फर्स्ट एंगल मेथड से प्रोजेक्शन ड्रॉ कर रहे हैं, देन कंसेप्ट इज दैट कि आपका जो टॉप व्यू है फ्रंट व्यू के विलो होगा, जहां पे आपके लेफ्ट हैंड में राइट हैंड साइड व्यू बनेगा और राइट हैंड पे लेफ्ट हैंड साइड व्यू ड्रॉ होगा। दैट इज द कंसेप्ट।
अगर आप इसको चेंज करते हैं तो आप रॉन्ग ड्रॉ कर रहे हैं, रॉन्ग इंफॉर्मेशन पास कर रहे हैं। ये स्टैंडर्ड आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, और आप स्टैंडर्ड फॉलो नहीं कर रहे मतलब आपका जो प्रोसीजर है वो रॉन्ग है। इसलिए स्टैंडर्ड्स बहुत जरूरी है ना। स्टैंडर्ड्स इज इंपॉर्टेंट फॉर इक्विबिलिटी टू अंडरस्टैंड। ठीक है ना। आपने क्या कहते हैं कि फर्स्ट एंगल में क्या किया, राइट हैंड पे राइट हैंड व्यू बना दिया, और लेफ्ट हैंड पे लेफ्ट हैंड व्यू बना दिया, तो ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है। आपने किसी और के पास भेजा तो उसके पास रॉन्ग इंफॉर्मेशन जाएगी कि आपने लिखा हुआ है कि फर्स्ट एंगल में ड्राइंग है, लेकिन आपने फर्स्ट एंगल के स्टैंडर्ड्स और मेथड फॉलो नहीं किए। देन convections. What is the convections? Commonly objects, practice and method used for the technical drawings. तो जो भी कन्वेक्शंस है मीन्स क्या कहते हैं कि आपकी प्रोजेक्शन लाइन थिन रहेगी, जो ऑब्जेक्ट लाइन है वो थिक रहेगी, हिडन लाइन डॉटेड रहेगी, सेंट्रल लाइन क्या कहते हैं कि चेन लाइन में रिप्रेजेंट होगी, लाइक दैट। दीज आर दी प्रैक्टिस मेथड्स यूज्ड इन द टेक्निकल ड्राइंग्स। तो क्या है कि ये सारी चीजें मीन्स जैसे ही आप क्या कहते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है उसके इनसाइड आप डॉटेड लाइन देखते हैं, तो क्या अंडरस्टूड होता है कि ये जो लाइन है हिडन लाइन है, ये प्रेजेंट नहीं है, ये बैक की लाइन है जो हम हिडन करके दिखा रहे हैं, है ना। तो ये इजिली आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। टूल्स, डिवाइस यूज टू क्रिएट टेक्निकल ड्राइंग्स एंड मॉडल्स। तो जो भी टूल्स है आपका सर्किल प्रोटेक्टर है, कंपास है, सेट स्क्वायर्स हैं, रूलर्स है, ठीक है, मिनी ड्राफ्टर है। तो ये सारे क्या टूल्स हैं, पेंसिल है, इरेजर है, ये क्या टूल्स हैं, इसके थ्रू आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाते हैं। एप्लीकेशन, द वेरियस यूज ऑफ द टेक्निकल ड्राइंग। ठीक है। इंजीनियरिंग ड्राइंग इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम आर्टिस्टिक ड्राइंग। ठीक है। जो आर्टिस्टिक ड्राइंग है, जैसे क्या कहते हैं कि जो आर्टिस्ट होते हैं ना, नेचर की पिक्चर बनाई एक सीनरी टाइप में, घोड़ा बना दिया, कुत्ता बना दिया, आदमी का डायग्राम बना दिया। तो जो आर्टिस्टिक ड्राइंग होता है वो टोटली डिफरेंट रहता है इंजीनियरिंग ड्राइंग से। इंजीनियरिंग ड्राइंग में कंसेप्ट चलता है, लॉजिक रहता है, कंसेप्ट एंड लॉजिक इज दियर। ठीक है ना। और जो आर्टिस्टिक ड्राइंग रहता है वो इमेजिनेशन पे रहता है, किसी भी तरीके की कोई भी ड्राइंग वो बना सकते हैं, है ना। उसमें क्या कहते हैं कि कोई लॉजिक और कोई स्टैंडर्ड फॉलो करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। जो क्या कहते हैं कि दिखने में अच्छा लगे, दैट इज ड्राइंग। ओके। विच आर यूज टू एक्सप्रेस अथेंटिक, फिलोसफिकल एंड ऑब्स्ट्रैक्ट आइडिया। सर ये फिर से बताओ ना एक बार। ठीक है। तो देखिए आपका जो आर्टिस्ट, जैसे आर्टिस्ट है ना, आपने कोई पेंटिंग लेने गए है ना, अभी क्या कहते हैं कि जैसे आपने एक पेंटिंग लिया हॉर्स की, या फिर क्या कहते हैं कि वाटरफॉल की आपने एक पेंटिंग लिया, तो वो आपका क्या है, आर्टिस्टिक व्यू है, आर्टिस्टिक ड्राइंग है। उसमें किसी तरीके का क्या कहते हैं कि लॉजिकल वे फॉलो नहीं होता है। ये नहीं रहता है कि जो वाटरफॉल की पिक्चर ले रहे हैं उसमें कितने एरिया में वाटरफॉल होना चाहिए, है ना, कि कौन सा स्टोन कहाँ पे होना चाहिए, ये कोई फिक्स नहीं रहता है। दैट इज द नेचुरल थिंग। बट लेकिन जब हम क्या कहते हैं कि किसी मशीन की ड्राइंग बनाते हैं, है ना, किसी प्रोडक्ट की ड्राइंग बनाते हैं, तो वो क्या है, इंजीनियरिंग ड्राइंग में आता है, उसकी डिटेलिंग हमको देनी रहती है ना। तो वो क्या होता है, उसकी डिटेलिंग हमको देनी रहती है। तो मेरे क्या रहता है कि वो आर्टिस्टिक से एकदम डिफरेंट रहता है। तो जो आर्टिस्टिक ड्राइंग है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, अथेंटिकनेस, एक्सप्रेस जो है
नेचर के बारे में बता रहा है, या फिर वाटरफॉल के बारे में बता रहा है, या एक ऐसे आदमी के बारे में बता रहा है जो कुछ सोच रहा है ना, थिंकिंग कर रहा है, तो वो पिक्चोरियल, जस्ट पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन रहता है। लेकिन बेटा जब हम इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में बात करते हैं तो ये क्या है, लॉजिकल और स्टैंडर्ड्स के बेस पे रहता है ना। इसमें क्या कहते हैं कि ऐसा नहीं होता है, जैसे क्या कहते हैं कि आपने पिक्चोरियल ड्राइंग्स देखी, उसमें कोई भी लाइन मोट थिक होती है, कोई भी लाइन आपका थिक हो सकती है, थिन हो सकती है, लेकिन इसमें आपका कंसेप्ट है, जो हिडन लाइन है वो डॉटेड ही रहेगी, जो क्या कहते हैं कि प्रोजेक्शन लाइन है वो थिन ही रहेगी, जो ऑब्जेक्ट लाइन है वो डार्क ही रहेगी, है ना। ये एकदम फिक्स क्राइटेरिया है, फिक्स स्टैंडर्ड है, और ये सारे स्टैंडर्ड्स आपके आर्टिस्टिक ड्राइंग में फॉलो नहीं होते हैं। इसलिए आपका कहते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग और आर्टिस्टिक ड्राइंग जो है वो डिफरेंट है। सो सर वो अभी डायग्राम मतलब 3D रहेगा ना? मतलब कौन सा डायग्राम? मतलब इंजीनियरिंग ड्राइंग हम ये पेज पे करते हुए समझो दूसरे को देना है, दूसरे कंपनी को, तो 3D में रहेगा ना? नहीं नहीं पार्ट पार्ट मतलब एक अंदर पार्ट असेंबल किया तो उसका। नहीं नहीं बेटा, जो भी ड्राइंग हम भेजते हैं ना, इंजीनियरिंग ड्राइंग जो भेजते हैं, वो हमेशा आर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में ही भेजते हैं। मतलब क्या ओके कहते हैं, जो थ्री व्यू होते हैं ना, व्यू। आपका टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू, ठीक है ना। तो 2D डायग्राम ही हम सेंड करते हैं, पिक्चोरियल व्यू उसका नहीं सेंड होता है। सर जब भी हम, मतलब हाँ बोलिए हम बोलिए। हम उसका फ्रंट व्यू और टॉप व्यू मतलब वो ड्रॉ करके मतलब दूसरी कंपनी को भेजते हैं क्या? हाँ वैसा ही रहता है, अभी आपको मैं शो करता हूँ। सर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें मतलब वो ड्राइंग बनानी होती है क्या, थर्ड क्वाड्रेंट में? दो ही नहीं, क्वाड्रेंट में बना सकते हैं ना? हाँ दोनों में से कोई भी चूज, किसी भी कोऑर्डिनेट में हम बना सकते हैं, लेकिन क्या प्रॉब्लम क्या है कि हमको उसका रूल फॉलो करना पड़ेगा। अगर हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट में बना रहे हैं तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट के रूल फॉलो करने पड़ेंगे। जैसे क्या फर्स्ट कोऑर्डिनेट में क्या होता है कि आपके जो व्यू हैं वो चेंज हो जाते हैं। लेफ्ट हैंड व्यू आपके राइट हैंड में बनता है, और राइट हैंड का व्यू आपके लेफ्ट हैंड में बनता है। जो टॉप व्यू होता है, मीन्स जो टॉप का प्रोजेक्शन होता है, वो फ्रंट व्यू के विलो बनता है। लेकिन थर्ड व्यू में क्या होता है, थर्ड व्यू में सब चेंज हो जाता है। राइट हैंड व्यू राइट हैंड में बनेगा साइड, और लेफ्ट हैंड व्यू लेफ्ट हैंड में बनेगा, और जो टॉप व्यू होगा वो फ्रंट के ऊपर बनेगा, यानी अबव टू द फ्रंट व्यू ड्रॉ होगा। दिस इज द रूल। तो अगर हम थर्ड व्यू में, थर्ड कोऑर्डिनेट में बना रहे हैं या फिर फर्स्ट कोऑर्डिनेट में बना रहे हैं, सॉरी, then we have to follow the method सर and standard of that coordinates। सर हाँ मतलब हमें ड्राइंग बनाने वक्त मतलब किस क्वाड्रेंट में हमें इजी ड्राइंग मतलब बना सकते हैं, इजी जाएगी देखिए, बनाने? इजीनेस में ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, थर्ड कोऑर्डिनेट ज्यादा बेटर रहता है। क्योंकि क्या है, इसमें इंटरचेंज नहीं होता है ना। हमने टॉप व्यू बनाया तो फ्रंट के टॉप पे बना, साइड व्यू अगर हमने राइट साइड व्यू बनाया तो हमारा जो राइट हैंड पे है वो राइट हैंड पे बनेगा, लेफ्ट हैंड बनाया तो लेफ्ट हैंड पे बनेगा, ठीक है ना। तो थर्ड प्रोजेक्शन, थर्ड एंगल का प्रोजेक्शन थोड़ा सा इजी रहता है इन कंपेरिजन टू फर्स्ट एंगल। लेकिन क्या है कि जो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है वो वर्ल्ड में मैक्सिमम कंट्री फॉलो करती हैं, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि उनको थर्ड एंगल प्रोजेक्शन समझ में नहीं आएगा। अगर आपने सिंबल दे दिया ये कि आपने थर्ड एंगल में बनाया है, देन दैट इज सफिशिएंट, देयर इज नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड what the drawing concept and what the product detail is there। ओके, उससे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। आप फर्स्ट और थर्ड में से किसी भी में ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन आपको रूल्स फॉलो करने कंपलसरी है। और जब भी डिटेलिंग की बात आती है कि व्हाट आर द डिटेल्स गिवन, सो जब भी इसकी आपका कंसेप्ट होता है तो क्या होता है कि आपको हमेशा
2D ड्राइंग ही सेंड करनी रहती है। जब कभी भी आप कुछ भी ड्रॉ करते हैं, देन आपको कुछ कहीं पे भेजना है, सेंड करना है, व्हाट इज द वॉट एवर द इंफॉर्मेशन in the form of the drawing, then you have to only send the two-dimensional drawing. पिक्चोरियल ड्राइंग या फिर आइसोमेट्रिक जो ड्राइंग रहती है वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए सुटेबल नहीं रहती है, उसको नहीं सेंड करते हैं। तो जो भी पिक्चोरियल व्यू रहेगा या फिर आपका कंपोनेंट है सॉरी, तो वो 2D में ही रहता है, रिप्रेजेंटेशन होता है उसका। ओके। सो यहाँ पे आप देखिए इंजीनियरिंग ड्राइंग है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में दो है, एक मैनुअल ड्राइंग है और एक आपका कैड ड्राइंग है, ठीक है। तो मैनुअल ड्राइंग जो अभी हम लोग पढ़े, यानी जितनी चीजें भी हम लोगों ने पढ़ी है वो मैनुअल ड्राइंग में आती है। हाँ, तो आपका ये जो मैनुअल ड्राइंग है जितनी भी चीजें आपने क्या कहते हैं कि जैसे अभी एक्सप्लेन किया मैंने, आपने पढ़ी हैं, वो आपका मैनुअल ड्राइंग में आता है। और सेम थिंग्स जैसे आपने क्या कहते हैं कि ये टॉप व्यू, फ्रंट व्यू है ना, साइड व्यू, लाइन ड्रॉ किया, सर्कल ड्रॉ किया, ये अगर आप कंप्यूटर के थ्रू करते हैं तो वो आपका कैड में आता है। इट इज इन द कैड। So I want to show something, just wait. तो देखिए ये एक रिप्रेजेंटेशन है, एक रिपोर्ट है। रिपोर्ट किसकी? एक पेटेंट रिपोर्ट है ना। पेटेंट अप्लाई करते हैं कि आपका न्यू थिंग्स है, ठीक है ना। तो इसमें देखिए ये पूरी रिपोर्ट दिखाने का मेरा वो मोटो नहीं है आपका। मेरा क्या मोटो है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये मोटो है मेरा। अभी यहां पे देखिए, ये जो पूरी ड्राइंग है, कंप्लीट ड्राइंग ऑफ द प्रोडक्ट, ये किस फॉर्म में है? 2 डायमेंशनल। यहां पे कोई 3D ज्योमेट्री आपको दिख रही है? देयर इज नो 3D ज्योमेट्री, एनी आइसोमेट्रिक व्यू 2D ऑफ द प्रोडक्ट, सारे के 2D ड्राइंग सारे है ना। तो ये सेम ड्राइंग आपका क्या कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए जाती है। सेम टाइप की ड्राइंग आपकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए जाती है ना। देयर इज नो 3D ज्योमेट्री। 3D ज्योमेट्री आपको स्टार्टिंग के लिए, आपके कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए आपको गिवन रहती है। अदरवाइज मेजरमेंट भी दिए है क्या? ये क्या कहते हैं कि ये बुलेट्स दिया रहता है ना। इसको क्या कहते हैं? इसको बुलेट्स कहते हैं, है ना। और इसकी जो इंफॉर्मेशन रहती है ना, जैसे 15 नंबर है, 57, 3, तो ये अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, है ना। और इस कंपोनेंट की डिटेल अलग रिपोर्ट में गिवन रहती है कि आपका 16 नंबर का जो कंपोनेंट है वो क्या है, उसकी डायमेंशन क्या है। क्योंकि अभी ये देखिए ये कंप्लीट आपका क्या कहते हैं कि प्रोडक्ट है ना। तो अब इसमें क्या कहते हैं जो 13 नंबर का
ये कंपोनेंट है, ये वायर कनेक्ट है या फिर कनेक्टर है, ये कनेक्टिंग रॉड है एक, तो इसका डायग्राम अलग रहेगा, वो डिटेल ड्राइंग में आता है ना। ये क्या कहते हैं कि सिंपल आपका कंपोनेंट ड्राइंग है, ठीक है ना। सॉरी। सर ये ऑटोकैड में करते हैं ना मतलब? हाँ, ये ऑटो कैड में करते हैं, वही आपको अभी एक्सप्लेन करने जा रहा हूं मैं। सर मतलब वो मेजरमेंट ने वो उसके नंबरिंग होती है? नहीं नहीं, ये बहुत ऊपर लेवल का मैंने दिखाया है अभी आपको, ये आपके लेवल से काफी ऊपर का है, क्योंकि ये आपका असेंबली डिजाइन था। वो क्या था, वो आपका असेंबली डिजाइन था। मतलब अभी तो हम सिर्फ एक छोटा छोटा कंपोनेंट ड्रॉ कर रहे हैं, स्मॉल स्मॉल कंपोनेंट ड्रॉ कर रहे हैं, है ना। सर ये हमें मतलब ये आपने अभी दिखाया वो हाई लेवल का हमें डिग्री लेवल में भी पढ़ाया जाएगा क्या? अगर आप देखिए, अगर आप अपना कैरियर डिजाइनिंग फील्ड में बनाना चाहते हैं तो ये वो सारी चीजें आप पढ़ेंगे, ठीक है ना। अभी डिप्लोमा लेवल पे आपका फिनिश होगा, और आप क्या कहते हैं कि अपना जो कैरियर इन फ्यूचर कैरियर डिजाइन के फील्ड में बनाना चाहते हैं, देन यू हैव टू रीड ऑल दी कंसेप्ट रिगार्डिंग दैट, ठीक है ना। लेकिन क्या कहते हैं कि अभी आप अगर फर्दर स्टडी में जाते हैं डिजाइन के, तो जो आपका मैनुअल है ना, ये डिडक्ट हो जाता है। अभी क्या कहते हैं कि इन करंट सिचुएशन, करंट डेवलपमेंट, कोई भी मैनुअल ड्राइंग ड्रॉ नहीं करता है, मैनुअली ड्रॉ नहीं करता है, सब कैड बेस हो गया है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन एंड ड्राफ्टिंग। इसका फुल फॉर्म है कंप्यूटर एडेड डिजाइन एंड ड्राफ्टिंग, एंड दिस इज मैनुअल ड्राइंग। तो ये कंप्यूटर एडेड मतलब कंप्यूटर ऐड हो जाता है। तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, बहुत सॉफ्टवेयर हैं जो कि कैड पे काम करते हैं, है ना। आपका एक तो आप सभी लोग जानते हैं ऑटो कैड, ओके। फिर आपका कैटिया है, सॉलिड वर्क है, क्रियो है, सॉलिड एज है, इन्वेंटर है ना। तो ये बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर है जो कि आपको कैड ड्राइंग ड्रॉ करने में हेल्प करते हैं, जिससे आप कैड ड्राइंग ड्रॉ कर सकते हैं। कंप्यूटर हैज अ मेजर इम्पैक्ट ऑन द मेथड यूज टू डिजाइन एंड क्रिएट टेक्निकल टेक्निकल ड्राइंग्स, ठीक है ना। डिजाइन एंड ड्राफ्टिंग ऑन कंप्यूटर आर चीप एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है। ये क्या कहते हैं कि जब कंप्यूटर इन्वॉल्व होता है तो एक तो हमारा टाइम बहुत कम हो जाता है ना। जो ड्राइंग मैनुअली हम 1 to 2 आवर्स में ड्रॉ करते हैं, वही सेम ड्राइंग हम कंप्यूटर की हेल्प से 3 से 4 मिनट में ड्रॉ कर सकते हैं, 3 to 5 मिनट्स। एंड करेक्शन इज ऑल्सो इजी, ठीक है। अगर हमको जो ड्राइंग हमने बनाई है उसमें करेक्शन करना है, वो भी बहुत इजी है। मीन्स किसी की लेंथ कम करनी है ना। आपने आपको 12 mm की लेंथ ड्रॉ करनी थी, लेकिन आपने 15 की कर दी या 10 की कर दी, तो उसको 10 को 15 करना, सॉरी 10 को 12 करना और 15 को 12 करना बहुत ही इजी है। तो editing of the drawing and drafting of the drawing is very much easy and less time consuming through the help of computers. सर हाँ हमको बोलिए। सेकंड और थर्ड ईयर में भी ड्राइंग होगी कि नहीं? आपको सेकेंड ईयर में ड्राइंग है, थर्ड ईयर में ड्राइंग नहीं है। जो सेकेंड ईयर की ड्राइंग है वो आपका टोटली मशीन से रिलेटेड है,
ठीक है, और जैसे सर आप थर्ड ईयर को, डिप्लोमा, हाँ थर्ड ईयर थर्ड में ईयर नहीं को है, नहीं है? नहीं थर्ड ईयर में नहीं है। अभी आप क्या कहते हैं कि आपकी ब्रांच क्या है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है ना। तो जो डिप्लोमा होता है, एक डिप्लोमा होता है कैड कैम से भी होता है, कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग एंड कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। तो जब आप इस ब्रांच से अगर करते हैं, क्योंकि अभी नासिक डिस्ट्रिक्ट में या फिर पुणे डिस्ट्रिक्ट में भी नहीं है डिप्लोमा कैड कैम्प से, तो क्या कहते हैं, तो फिर आपका ऑल 3 ईयर ड्राइंग रहता है, ऑल 3 ईयर ड्राइंग रहता है, क्योंकि वो ब्रांच ही आपका डिजाइन से रिलेटेड रहती है। तो इसमें सेकेंड ईयर में आपको रहेगा, जिसमें क्या कहते हैं कि आपको अभी नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे, तो अभी आपको बेसिक बताया जा रहा है, उसमें आपको मशीन्स के बारे में, मशीन्स की असेंबली के बारे में, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट की असेंबली कैसी होती है, ड्राइंग कैसे करते हैं, वो सारे चीजें आपको बताई जाएंगी, कंसेप्ट उसके रिकॉर्डिंग होगा। सो यहाँ पे अभी, सर थर्ड ईयर हाँ कौन सा बोलिए, सब्जेक्ट रहेगा फिर? क्या हुआ। थर्ड ईयर को ड्राइंग का सब्जेक्ट नहीं होगा तो फिर कौन सा रहेगा सब्जेक्ट? थर्ड ईयर में आपका क्या कहते हैं कि अभी जो आपका सेकेंड ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर रहेगा ना, उसमें भी मैनुअल रहेगा। फिर क्या कहते हैं कि आपका कंप्यूटर जो सेकेंड सेमेस्टर में है ना, वो कंप्यूटर में इन्वॉल्व हो जाएगा। थर्ड ईयर में जो आपके सब्जेक्ट्स रहते हैं ना, वो क्या कहते हैं कि मैनेजमेंट का हो गया, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग हो गया, ठीक है ना, मैनेजमेंट के सब्जेक्ट, और क्या कहते हैं कि और अदर सब्जेक्ट्स रहते हैं, है ना। आपका क्या कहते हैं कि रिसेंट ट्रेंड इन इंजीनियरिंग, रिसेंट ट्रेंड इन इंजीनियरिंग मीन्स काफी एडवांस चीजें हो जाती हैं, है ना। उसके बेसिस पे रहता है, क्योंकि आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग बहुत वास्ट है, बहुत वाइड है ना। तो इसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग की सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी, है ना। अभी देखिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में सिर्फ डिजाइन तो है नहीं, है ना, डिजाइन भी है, और आपका ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग भी है ना, थर्मल इंजीनियरिंग भी है, मटेरियल इंजीनियरिंग भी है, क्योंकि जो मैकेनिकल इंजीनियर है ना, वो मटेरियल्स भी डिजाइन करते हैं, है ना, अलॉय वगैरह जो होता है मिक्सिंग करते हैं। जैसे क्या कहते हैं कि आपका स्टील है, स्टील क्या है, आयरन एंड कार्बन का मिक्सचर रहता है ना, उसमें आयरन का आयरन रहता है, और उसमें क्या कहते हैं कि हम कार्बन का मिक्स मिक्स करते हैं, तो हमारा स्टील क्रिएट हो जाता है। तो क्या है, ये आपका मटेरियल, तो जो मटेरियल इंजीनियरिंग है वो भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की ही एक ब्रांच है। तो तो सर अभी आपका, स्टील अलॉय हाँ है बोलिए क्या? बेटा, क्या हुआ। स्टील अलॉय है ना? हाँ स्टील है ना, स्टील क्या कहते हैं कि आयरन का ही कंपोजिट है, जिसमें क्या स्टील कहते हैं अलॉय है। कि, हाँ स्टील अलॉय है, स्टील अलॉय है ना। उसमें क्या कहते हैं कि कंपोजिट करते हैं ना, आपका जो कार्बन रहता है, कार्बन मिक्स करते हैं, तो वो स्टील में कन्वर्ट होता है, कार्बन का फिक्स परसेंटेज रहता है उसमें। तो इतने सारे ब्रांचेस हैं, तो आपको शॉर्ट में सारी इंफॉर्मेशन दी जाएगी, सारी ब्रांचेस की, जो कि आपके मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। सो हम कंटिन्यू करते हैं, वाई वी गो फॉर द मैनुअल ड्राइंग। अभी कंप्यूटर वगैरह सब आ गया है, उसके बाद भी हम मैनुअल ड्राइंग में क्यों जाते हैं। Computer cannot replace the drafting board and equipment as learning tools. Once you have learned the basic of mathematics, now after class 12, you are allowing to use of the calculator and computer. ठीक है, सेम कंसेप्ट क्या बता रहे हैं कि कंप्यूटर आ गया, इसका मतलब ये नहीं है कि हम मैनुअल ड्राइंग को हटा दें, ठीक है ना। कि जैसे क्या कहते हैं कि आप इंजीनियरिंग में है, डिप्लोमा में है ना, तो अभी तो आपने फर्स्ट ईयर में है, आपने कोई भी कन्वेंशनल पेपर नहीं दिया है ना। डिप्लोमा में क्या होता है बेटा,
कि जैसे आप थर्मल इंजीनियरिंग या सोम वगैरह का पेपर देते हैं ना, तो एग्जामिनेशन में आपको कैलकुलेटर अलाउ रहता है ना। अभी आपने 10वीं का एग्जाम दिया होगा या 9वीं 8वीं का एग्जाम दिया होगा, उसमें कैलकुलेटर वगैरह नहीं यूज कर सकते ना, अलाउ नहीं रहता है। लेकिन यहाँ पे आपका क्या कहते हैं कि कैलकुलेटर अलाउ रहता है, आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं एग्जामिनेशन में टू कैलकुलेटिंग द नंबर्स। क्यों? क्योंकि नंबर्स कैलकुलेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका लॉजिक, है ना। तो लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन कंसेप्ट ऑफ आपका कैलकुलेशन, लॉजिक इज मोर वैल्यूएबल इन द इंजीनियरिंग, ठीक है ना। तो अगर आपका कंसेप्ट और लॉजिक है, देन टू सेव योर टाइम, टू सेव योर टाइम, कैलकुलेटर इज अलाउ इन योर एग्जामिनेशन। तो सेम वे में आपका मैनुअल ड्राइंग का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपको समझना में आना चाहिए बिफोर स्टार्टिंग द कंप्यूटर ड्राइंग। तो सेम वही है, वंस यू हैव लर्न द बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स, नाउ आफ्टर क्लास 12 यू आर अलाउड टू यूज द कैलकुलेटर एंड कंप्यूटर, ठीक है। बेसिक मालूम होने के बाद ही, है ना, आपको क्या कहते हैं कि अलाउ किया जाता है कैलकुलेटर और कंप्यूटर को यूज करने के लिए। सेम वे में आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग का कंसेप्ट मालूम होगा, उसके बाद ही आप अच्छे से कंप्यूटर में ड्राइंग कर पाएंगे और उस चीज को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। if the basic fundamentals are clear, see, if the basic fundamentals are clear, better you can be more the power of software, ठीक है ना। तो आप टेक्नोलॉजी को, चीजों को ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे जब उसका बेसिक आपको क्लियर रहेगा। टू बी एन एक्सपर्ट इन टेक्निकल ड्राइंग, the first course of engineering drawing manual drawing is the first step. Manual drawing is the first step to be an expert in technical drawing. Item required for the drawing, item required for the drawing, first drawing board, ये शायद आप लोगों ने अभी नहीं देखा है क्योंकि फिजिकली कॉलेज में आपने प्रेजेंट नहीं हुए। तो ड्राइंग बोर्ड रहता है, ड्राइंग शीट आप सभी लोगों ने देखी है ना। और ड्राइंग बोर्ड भी देखा होगा शायद आपने, लास्ट सेमेस्टर में आए होंगे तो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में ड्राइंग बोर्ड का यूज किया होगा। मिनी ड्राफ्टर, ये किसी आपने देखा है, किसी ने ये देखा है मिनी ड्राफ्टर आप में? एनी स्टूडेंट्स? यस सर, देखा। ओके ओके। सो मिनी ड्राफ्टर, ड्राफ्टिंग मशीन एंड टी स्क्वायर ऑब्लिक, इसमें से कोई भी यूज कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स बॉक्स कंटेनिंग कंपास, डिवाइडर एक्सेट्रा, स्केल, प्रोट्रैक्टर, फ्रेंच कर्व्स, ड्राइंग पेंसिल, इरेजर, ड्राइंग क्लिप, पिन, एडेसिव टेप, जिसमें ये सब क्यों यूज होता है, ड्राइंग क्लिप, पिन, ताकि आपकी जो ड्राइंग शीट है वो ड्राइंग बोर्ड के ऊपर पर्टिकुलर प्लेस पे फिक्स हो जाए। मतलब जब आप मिनी ड्राफ्टर को यूज करें तो आपका जो ड्राइंग शीट है वो डिस्टर्ब नहीं हो। एंड डस्टर फॉर इरेजिंग पर्पस, टू रिमूव द डस्ट। जैसे क्या कहते हैं कि आपने इरेजर का यूज किया ना, तो इरेजर के क्या पार्टिकल्स आ जाते हैं, तो उसको हटाने के लिए डस्टर का यूज होता है ना। उसको रिमूव करने के लिए डस्टर का यूज करते हैं। तो ये आपका ड्राइंग बोर्ड है। ड्राइंग बोर्ड मस्ट बी प्लेस ऑन द टेबल विथ वर्किंग एज अलाउड टू बी एंड लेफ्ट साइड, ठीक है। तो जो वर्किंग एज है वो आपके लेफ्ट साइड, मीन्स जो भी हम ड्राइंग स्टार्ट करते हैं वो लेफ्ट से करते हैं, क्योंकि जो भी हम राइटिंग भी करते हैं वो भी लेफ्ट टू राइट ही जाता है ना। तो सेम आपकी ड्राइंग भी लेफ्ट टू राइट ही स्टार्ट रहती है। देन ये आपका ड्राइंग बोर्ड साइज है, ठीक है ना, B0, B1, B2 एंड B3। जैसे आपका पेपर का साइज रहता है ना,
A0, A1, A2, A3, A4, A5 लाइक दैट, वैसे ही आपका बोर्ड साइज है, ठीक है ना। जितना ये नंबर कम होगा, बी के आगे का जितना नंबर कम होगा उतनी ही बड़ा साइज रहेगा, उतना ही लॉन्ग साइज रहेगा। बी नॉट का देखिए 1000 इंटू 1500, ये लॉन्गेस्ट साइज है ड्राइंग बोर्ड का। 700 इंटू 1000, 500 इंटू 700, 350 इंटू 500। लास्ट टू साइज आर नॉर्मली यूज फॉर द स्टूडेंट, मीन्स B2 और B3 स्टूडेंट्स के लिए यूज होता है। मीन्स आपने जो ड्राइंग शीट देखी है वो B2 और B3 साइज की है। ये आपका मिनी प्रोट्रैक्टर है, सॉरी मिनी ड्राफ्टर। यहाँ पे क्या होता है, ये क्लैंप होता है जो कि हम बोर्ड में फिक्स करते हैं। इस क्लैंप को, इस एंड को हम बोर्ड में फिक्स करते हैं। देन ये आपका मूवेबल रहता है, 2 स्केल्स है जो कि 90 डिग्री के एंगल पे फिक्स रहती है ना। ये आपका वर्टिकल रहता है, ये हॉरिजॉन्टल। कि आपका 2 स्केल्स रहती हैं जो कि 90 डिग्री के एंगल पे फिक्स रहती हैं। और ये आपका क्या कहते हैं कि रोटेशन होता है, यहां से आप रोटेट कर सकते हैं। लेकिन इसको भी हमको फिक्स करना रहता है, इस नॉब को हमको फिक्स करना रहता है। क्या करते हैं कि ये जो वर्टिकल एज है और ये हॉरिजॉन्टल एज है, इसको बोर्ड के कॉर्नर पे फिक्स करते हैं या फिर आपके ड्राइंग शीट के कॉर्नर पे फिक्स करते हैं, लेफ्ट बॉटम कॉर्नर पे फिक्स करते हैं। और उसके बाद इस नॉब को टाइट कर देते हैं, इस नॉब को टाइट कर देते हैं ताकि उस ये फिक्सिंग होने के बाद ये मूव ना हो, ठीक है। अगर ये मूव होगी तो आप जो लाइन ड्रॉ करेंगे वो क्या कहते हैं कि परपेंडिकुलर और वर्टिकल और हॉरिजेंटल नहीं रह जाएगी। और यहां से आपका रोटेशन होता है, मींस यहां से आपको मूवमेंट मिलता है। आप मींस अप एंड डाउन मूव कर सकते हैं, लेफ्ट एंड राइट मूव कर सकते हैं। ये आपका पिवोट होता है, मींस यहां से आपका रोटेशन रहता है, ठीक है ना। दिस इज योर मिनी ड्राफ्टर। ओके सी, ये मिनी ड्राफ्टर आपका सेट हुआ है यहाँ पे। मिनी ड्राफ्टर फिक्स ऑन द ड्राइंग बोर्ड। सी, ये कॉर्नर पे हमने फिक्स किया और ये ड्राइंग शीट हमने फिक्स की, और अकॉर्डिंग टू दिस ड्राइंग शीट हमने ये जो आपका स्केल है, मिनी ड्राफ्टर के 2 स्केल्स हैं, इनको फिक्स कर दिया। ओके, सो क्लैंपिंग द मिनी ड्राफ्टर। सी, यहाँ पे आपको मेथड दिया है। सेट द प्रोटेक्टर हेड विद द रेफरेंस मार्क इंडेक्सिंग 0 डिग्री। सी, यहाँ पे 0 डिग्री फिक्स किया है। होल्ड द नोब फैमिली बाय द हैंड while line is drawing by the other, ठीक है। फिक्स द क्लैंप ऑफ द मिनी ड्राफ्टर एट द टॉप लेफ्ट कॉर्नर along the top horizontal edge, the left vertical edge of the board। सो ये आपने क्या कहते हैं कि ये देखिए यहाँ पे टेप से फिट किया गया है, चारों कॉर्नर, ऑल 4 कॉर्नर पे टेप फिट कर दिया गया है। और उसके बाद आप ये मिनी ड्राफ्टर का जो फिक्सिंग एंड है वो यहाँ पे फिक्स किया है। उसके बाद आप मिनी ड्राफ्टर को शिट करते हैं, ठीक है। प्लेस द ड्राफ्टिंग शीट अंडर विथ scale of the mini drafter, fix the drawing sheet to drawing board with the scale of the mini drafter aligned either the vertical or horizontal। ओके, सो वर्टिकली अलाइन कर सकते हैं या हॉरिजेंटली अलाइन कर सकते हैं, क्योंकि किसी आप चाहे वर्टिकली इफ यू वर्टिकली अलाइन और हॉरिजॉन्टली अलाइन, अगर आप वर्टिकली अलाइन करते हैं तो इट इज डायरेक्टली अलाइन टू द वर्टिकल। जस्ट वेट, कितना पेज नंबर था?
Okay, means you, if you align vertically, then it is automatically align horizontally, and if you align horizontally,